সেই আমাদের এমএলএ আপনারা বানিয়েছেন। এবার আপনাদের কাছে সুযোগ রয়েছে। উনাকে আমি বেশি কিছু বলবো না, যার জন্য আপনারা বসে আছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশে, উনার বক্তব্য আপনারা শুনবেন। একটা কথায় আপনাদের কাছে আবেদন রাখবো যে এই ত্রিপুরাকে যদি শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা বানাতে হয়, আপনি 16 তারিখ সকাল সকাল গিয়ে আপনারাও যাবেন, অন্যদেরকে বলবেন এই আন্দোলনের তারিখে খালি ভারতীয় জনতা পার্টি যাদবলাল নাথকে খালি ভোটার টিপে দেবেন, তাই চলবে, আর কিচ্ছু লাগবে না। এবং আমি নিশ্চিত আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার এখানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ ঘরে ঘরে ডোর টু ডোর আমিও যাই, সব জায়গায় যাই, মানুষের চেহারা দেখলে বোঝা যায় যে আগামী দিন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির উপর আস্থা রয়েছে এবং বিশ্বাস করেন। এবং আমি আগামী দিন এই ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমরা করব। এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন যে ত্রিপুরাতে আইন শৃঙ্খলা এবং জাতি জনজাতি তাদের মধ্যে যে ঐক্য, সেটাকে আমরা সুদৃঢ় করব। বন্ধুগণ, আরেকটা পার্টি এখানে মথা, আপনারা সবাই জানেন। আমি মথার যে লিডার আছেন উনাকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, আপনি কি বললেন? আপনি কি বলেছেন? কি নিয়ে মানুষের কাছে গেছেন? পয়লা জাতি এরকম ইত্যাদি বলেছেন এতদিন ধরে। আপনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের কথা বলেছেন। আমি বলছি এই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা কোনোদিন হতে দেব না, কোন অবস্থায় আমরা হতে যাব না। গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমরা চাই না। আমাদের কাছে ত্রিপুরাই যথেষ্ট। আমরা ত্রিপুরাকে উন্নতি করবো, আমরা জনজাতিদের উন্নয়নের কথা বলবো। ভুলে যান এইসব কথা। আগে আপনার বাউন্ডারিটা বলুন, গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের বাউন্ডারিটা কোথায়? একবার বলছেন বাংলাদেশে চলে গেছে, একবার বলছেন আসামের মধ্যে চলে গেছে, মিজোরামে চলে গেছে। আগে বাউন্ডারিটা নিয়ে আসুন, তারপর কথা বলুন। কাজে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের আপনি বিভ্রান্তি করবেন না। এই আপনার আজকের এখান থেকে ওনার কাছে আমি আবেদন করলাম। এবং আমি নিশ্চিত আগামী দিন এই খেল, এই ভানুমতির খেল আর এখানে চলবে না। বন্ধুগণ, সবাইকে এখানে আবার আমি আমার হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে। এবারে বক্তব্য তুলে ধরার জন্য অনুরোধ রাখবো আমাদের উত্তরপ্রদেশের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথজি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। সবাইকে নমস্কার। সবাই ভালো আছে? ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। বন্দে বন্দে বন্দে। त्रिपुरा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहब ने भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जादवलाल देवनाथ जी पश्चिमी बंगाल से माननीय विधायक श्री शांतनु प्रमाणिक जी, श्री सुदीप देव जी, श्री काजल दास जी, श्री वीरेंद्र दास जी, श्री पन्नालाल शर्मा जी, श्री विश्वजीत नाथ जी और यहां पर भारी संख्या में उपस्थित इस विधानसभा सीट बागबासा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले यहां की स्थानीय गुरुमां विकासा देवी के इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के अंदर त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार के कार्यों ने त्रिपुरा राज्य को एक अलग पहचान दिलाई है। पहली बार त्रिपुरा राज्य में डबल इंजन सरकार के कार्यों को यहां के गांव-गांव में, हर नागरिक के घर में देखा जा सकता है। सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र का वास्तविक रूप अगर धरातल में देखना है तो त्रिपुरा के अंदर वह आप सबको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 लाख परिवारों को एक आवास मिल जाना, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर गरीब परिवार के पास एक शौचालय का निर्माण हो जाना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर हर परिवार के पास रसोई गैस का, एलपीजी का कनेक्शन फ्री में उसे उपलब्ध हो जाना, हर घर नल योजना के माध्यम से ज्यादातर गांवों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कर देना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ बिना भेदभाव के हर एक किसान को उपलब्ध करा देना, यह आयुष्मान भारत की योजना हो या फिर मनरेगा के अंदर मिलने वाला कार्य, आज वह बिना भेदभाव के त्रिपुरा के अंदर प्राप्त हो रहा है। और यही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भाइयों बहनों, त्रिपुरा ने एक लंबे समय तक कम्युनिस्टों के कुशासन को देखा है, उनकी अराजकता को देखा है, उनकी गुंडागिर्दी को झेला है, उनके द्वारा त्रिपुरा के सामने जिस प्रकार का भीषण संकट खड़ा किया गया था, उसको त्रिपुरा के लोगों ने देखा है, झेला है। 5 वर्ष पहले तक ही कम्युनिस्टों का कुशासन त्रिपुरा के अंदर त्रिपुरा के नौजवानों को बेरोजगार बना रहा था, किसानों को बदहाल बना रहा था, माताओं और बहनों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा था, योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिल पाता था और सुरक्षा का वातावरण था। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का लाभ जब त्रिपुरा को मिला, बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं मिलनी प्रारंभ हुई। भाइयों बहनों, एक तरफ कम्युनिस्टों का कुशासन और इस चुनाव में तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कुशासन को कई गुना मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों मिलकर के फिर से अराजकता पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस जिसका अपना एक देश की आजादी के बाद देश को ठगने का इतिहास रहा है, जिसने विकास नहीं बल्कि देश के अंदर सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा किया,
वह आज कांग्रेस आप सबके सामने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के एक बार फिर से आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए आई है। विकास की जिन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है, इन योजनाओं से आपको वंचित करने के लिए आ रही है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, हमें सतर्क होना होगा। हमारी सतर्कता का आधार यह होना होगा, कांग्रेस ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया, लेकिन शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के किसी भी तबके तक नहीं पहुंचने दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब बिना भेदभाव के शासन की योजनाएं प्रत्येक तबके को उपलब्ध हो रही है, तो कांग्रेस को बुरा लगता है। कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता, देश की जनता को अच्छा लगता, लेकिन कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता है। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। आज तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। कांग्रेस उसका विरोध करती थी, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी। कांग्रेस राम सेतु को तोड़ करके भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रही थी। और यूपीए के शासनकाल में आपने देखा होगा, घोटाले पे घोटाले, रोज एक नया घोटाला कांग्रेस का सामने आ जाता था, रोज एक नया घोटाला सामने आ जाता था। क्या अराजकता पैदा की थी कांग्रेस ने? क्या अराजकता पैदा की थी? कभी कोयला घोटाला, कभी 2G घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला। ये घोटाला कांग्रेस की पहचान बन चुकी थी। लेकिन आज जब नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, आज जब किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको पचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है। पूरे देश के अंदर अच्छा काम हुआ है। और त्रिपुरा को तो बोलना ही क्या, 5 वर्ष पहले भी मैं आया था, तब मैं देख रहा था, मकान नहीं थे, आवास नहीं थे गरीबों के पास, बिजली नहीं थी, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी, सुरक्षा का वातावरण नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे त्रिपुरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्री डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में आज यहां पर इन योजनाओं का लाभ हर घर तक बिना भेदभाव के त्रिपुरा वासियों को प्राप्त हो रहा है। और यही आह्वान करने के लिए आ रहा हूं, भाइयों बहनों, कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने बहुत विभाजन किया। आपने पहली बार देखा होगा, एक जनजाति समुदाय से जुड़ी हुई बहन देश की राष्ट्रपति बनती है, देश की राष्ट्रपति बनती है। केंद्र सरकार में आपने देखा होगा, पूरी कैबिनेट में सबसे अधिक मंत्री ओबीसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें नेतृत्व दिया गया है, जिसके माध्यम से समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और समाज को एक साथ
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की इन भावनाओं को आगे बढ़ा सके। और इसलिए मैं आज आपके पास इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगतलाल देवनाथ, जो बागबासा से भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य प्रत्याशी के रूप में आज आपके बीच आए हैं, इनके समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, डबल सरकार का लाभ जब सबको मिल रहा है, आज हमें जाति के आधार पर नहीं, किसी अन्य बात के आधार पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिन योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताए, फिर से डबल इंजन की सरकार बनाए और डबल इंजन की सरकार आपको सुरक्षा भी देगी, समृद्धि देगी और विकास के पथ पर अग्रसर करेगी। यही अपील करते हुए आज मैं आपके बीच में आपसे अपील करने के आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि बागबासा से जुड़े हुए आप सभी उपस्थित मतदाता भाई और बहन, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री जगतलाल देवनाथ को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। आप सभी सहमत हैं? श्री जगतलाल देवनाथ के लिए सहमत हैं सभी लोग? आप सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे। हर मतदाता 10-10 मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करेगा। अभी से संकल्प लेकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।